Sir, we are here. If you aren't famous, no, I am famous. I never said I'm not famous. I'm just saying, more kids need to sit in the classroom. There are so many kids who are enrolled, but the classroom is always just. मैं कहता हूँ किस दीवार पे सर मारूं? No, I'm joking. I'm joking. I love you all. I love you all. बस अब क्या ही करूं? मैं क्या इतना बुरा हूं मैं? No, I'm joking. यार मैं पागल हूँ. Sometimes I think to myself, before I start the class, I sometimes think to myself, I'm like, यार, I'm un poco loco. Do you know what un poco loco means? Poco loco means nutsy cuckoo. मेरे दिमाग का ना थोड़ा पता नहीं मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ. I don't know why I'm teaching. I don't know. Like I know why I'm teaching. It's to create a positive impact, to influence your teeny tiny minds, to make sure that you guys do something big in life. That's my goal. My goal is not to teach you chemistry. Chemistry आप ऐसे भी सीख रहे हैं साथ साथ वो स्टार आ जाएगा. Sir, are you having an existential crisis? No, no, you can't. I'm having a midlife crisis. यार midlife crisis तो तब होते हैं 50 30 40 साल के बाद बंद हो जाते हैं. सर इस वजह से आपके लेक्चर्स मैं घर के वालों सामने नहीं लेती. I swear to God, if you take my lectures in front of your parents will tell you to stop studying from me and they tell you unenroll करो. To learn from a proper teacher, proper जो आपके बड़ी दाढ़ी हो, जो बुड्ढा बाबा टाइप हो. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. सबसे पहले इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन. और आप लोगों को मैं आज से कहूंगा कि पढ़ते कैसे हैं, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता. सर मैं भी हेडफोन्स लगा लेती हूँ. नॉट गonna lie, मुझे मामा ने ये बात बोली है. कहती ये स्टूडेंट साथ. ओ नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ. क्या हो गया? आई एम नॉट अ स्टूडेंट. क्या हो गया? आई एम नॉट अ स्टूडेंट. इमरान खान बनने का स्कोप है अब में. यार व्हाट एम आई डूइंग विद लाइफ? आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग. I don't know. I don't know. I don't know. But my mom enjoys your lectures. That's awesome. I like it. कसम से यार, किसी दिन आपके अम्मी अबू ने सुने ना मेरी बातें, वो कहेंगे यार ये क्या है, किससे पढ़ रहे हो आप लोग? जाओ सही प्रोफेशनल जो स्कूलों में पढ़ाते हो, प्रोफेशनल हु डू दिस फॉर अ लिविंग, उनसे पढ़ो. ये क्या है? माई मदर टोल्ड मी योर टीचर्स लुक एज ओल्ड एज यू. ओ नहीं, और नहीं, मैं आप लोगों से बहुत बड़ा हूँ. 6 7 सालों का फर्क है. क्या हो गया? आप लोग छोटे बच्चे हो. आप लोगों की क्या एज है? 15 16. तो मेरे से आप लोग 7 7 साल, 7 8 साल. 14. उफ. 14 तो आप मेरे से 7 8 साल मैं पैदा हुआ था और आप लोग नहीं. आई एम 8 year old. माई सिबलिंग्स आर 9 years older देन मी. सर माई अम्मी आपको चार्ली चैपलिन बुलाती है. अब ये झूठ है. नाउ दिस इज अ लाई. आई थिंक नाउ यू आर मेकिंग इट अप. ये आप लोग कहना चाह रहे हैं. चलो लेट्स स्टार्ट यार, लेट्स स्टार्ट. ओके. Today we are going to start off with esterification, right? Now, before we talk about esterification, let's discuss what we mean by esterification, right? Before we go into the in-depth, diagrams and the in-depth displayed formulas and whatnot, let's just look into what esterification is. Esterification happens when you have alcohols and they react with carboxylic acids, right? They form your beautiful, beautiful new family, which is called esters, right? And this entire process is called esterification, when alcohols and carboxylic acids react to give you your beautiful esters. Now, you need to note something, that the reason why alcohols and carboxylic acid reacts is not just, you take an alcohol, sharab liya idhar se aur idhar se vinegar liya. It would be very easy to make esters if you would just take vinegar, which is ethanoic acid, the carboxylic acid, and you took alcohol, which is ethanol. Let's suppose we took ethanol, right? बाजार से शराब की बोतल पकड़ी, इधर से विनेगर पकड़ा, दोनों को रिएक्ट किया, एस्टर बना. ऐसे नहीं होता. You need certain conditions, right? And what are the conditions, sir? You need a catalyst, which is conc H2SO4. Conc H2SO4 means concentrated sulfuric acid. You need a catalyst, concentrated sulfuric acid. That's my beautiful catalyst. Let me write it here. ये मेरा catalyst है. And you need to heat it till about 200 degrees Celsius. So heat to 200 degrees Celsius, right? So this is the condition. And once you have these beautiful conditions, only then will a carboxylic acid react with an alcohol to give you your beautiful ester. सवाल पैदा होते हैं, sir, what in the world is ester? Ester usually naturally occurring होते हैं, and they're responsible for flavors in fruits and the smells that you have. आपके perfumes में सबसे ज़्यादा uses esters की जो है वो आपकी perfumes में होती है, because they are very sweet smelling compounds. They're very very beautifully sweet smelling compounds. So esters क्या बनाए? ये sweet smelling होते हैं. And because of their sweet smell, they're used in perfumes. जितने perfumes होते हैं, almost बहुत से perfume में aldehydes, esters, ये चीजें इस्तेमाल होती है. They're used in solvents.
Solvents क्या मतलब, they're used to dissolve stuff, right? They're used to dissolve solutes, right? And last but not least, they're used in food flavorings. जो आप नहीं लेते vanilla flavorings and what not, बिल्कुल बिल्कुल पीने की कोशिश करें, बिल्कुल करें। तो फूड फ्लेवरिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं ये। आप ये खाते भी हैं ना फ्लावर्स वगैरह का, जब आप अर्क निकालते हैं तो कुछ फ्लावर्स हैं। ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो एन एस्टर, तो बिल्कुल आप खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल को खा सकते हैं। ऑलिव ऑयल इज योर ब्यूटीफुल एस्टर, यू यूज इट इन योर सैलड्स, राइट? जो आपके रशियन सैलड्स और कौन से फूड फ्लेवरिंग्स, यस यस, फ्लेवरिंग्स नहीं लिखा, फ्लेवरिंग्स लिखा हुआ है राइट हियर, फ्लेवरिंग्स, राइट? सो दैट्स हाउ योर एस्टर्स आर। तो एस्टर्स कैसे बनते हैं? यू टेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अविनेश, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, इसमें आप चीजें डिसॉल्व भी कर सकते हो। जैसे परफ्यूम बनाते हैं तो व्हेन यू मेक अ परफ्यूम, व्हाट यू नीड, परफ्यूम में अंदर कोई लिक्विड तो मौजूद है ना, तो इट आल्सो एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट एज वेल एज दोस दैट स्वीट स्मेल, फिर आप अपने ऊपर स्प्रे करते हैं उसको। तो फ्लेवरिंग, FLA, अच्छा अच्छा, फ्लावरिंग मैंने लिखा है, ठीक है यार, उल्टा लिख लिया, मैं इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूँ। फ्लेवरिंग, बस अब खुश हो गए हो। It will be the So, okay, let me also make sure that you guys can't unmute yourself because the recording में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो olive oil is also an ester. You can use it in your Russian salads and whatnot, right? But how in the world does this ester form? It forms when alcohols react with carboxylic acids, and you need certain conditions. What are the two conditions that you need? You need conc H2SO4. Concentrated H2SO4 means जब आप sulfuric acid लेते हैं तो it should be concentrated. जो हम कहते हैं 1 mole per dm cube, 2 mole per dm cube, तो हम अच्छा खासा concentrated sulfuric acid लेते हैं, and this acts as a catalyst, and then we heat it till 200 degrees Celsius, right? But the question is, sir, how do you draw? ये भी एक reversible reaction होता है, लेकिन आपसे वो reaction नहीं मांगता, वो आपसे कहता है how do you draw an ester and how do you name an ester, right? Esters की बाकी सारी reactions आपके कोर्स में नहीं, you just need to know how to draw esters and how to name esters. सर बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, let's start with it, right? बहुत आसान तरीका है सर। Let's suppose you want to react ethanol and you want to react it with a carboxylic acid known as propanoic acid, right? So when ethanol reacts with a carboxylic acid, what will it give you? It will give you an ester. But remember, this ester will only form if you provide it with the conditions, which is conc H2SO4, and you need to heat it till 200 degrees Celsius. Now the question is, how do you name them? How do you name? आते हैं विनेश, आते हैं कि पानी बनता है कैसे बनता है, आते हैं उसमें, मैं सिर्फ आपको फिलहाल नेमिंग सिखा रहा हूँ। How do you name an ester which is made from the alcohol and is made from this beautiful acid? आ जाए देख लेते हैं। सर एथेनॉल का स्ट्रक्चर बना है, एथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? Make the same structure as the alkane, but instead of NH, write the OH. Done, sir? That's my beautiful ethanol. Easily making that beautiful structure. And let's make propanoic acid. How do you make propanoic acid, sir? How do you make propanoic acid? You first of all draw the functional group, which is, you first of all draw C double bonded to OOH. Functional group पढ़ते हैं क्या है, but हमने ये सीखा था पहले, हम C double bonded to OOH draw कर देते, and then we complete the carbons. Prop means 3 carbons, 1 carbon is already drawn, so how many more carbons do you need? You need 2 more carbons. Done, sir. That's your propanoic acid, and that is your ethanol. Any questions up until this point in the drawing of propanoic acid, in the drawing of ethanol? भाई नहीं, बिल्कुल सब सिंपल है, एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया एग्जैक्टली, एंड इंस्टेड ऑफ द एच आई राइट द ओ एच, राइट? और वही एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया, बट मैंने सी डबल बॉन्डेड टू ओ एच एक बनाया, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ विल दीज टू रिएक्ट? रिमेंबर, आपको ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन में हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट रिएक्शंस, व्हेन, व्हाई डू केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस? You first of all need the activation energy. Firstly, you need the correct orientation. You need, the minimum. The reactant particles must collide with each other. They must physically come into contact with each other. They must touch each other effectively, right? जिसको हम collisions कहते हैं. They must touch each other in the right orientation, and there must be the EA, which is the minimum energy that reactant particles must have in order to undergo successful collisions, right? ये हमने collision theory में पढ़ा था, chapter number 7, 8, rate of reaction में. Now this is not the correct orientation. The reason why this is not a correct orientation is because the carboxylic acid का ये जो C double bonded to OH है, it should face the alcohol's OH, right? It should face the carboxyl group. This is the carboxyl group, right? जो C double bonded to OH है, this is called the carboxyl group, और ये OH को हम कहते हैं hydroxyl. So the carboxyl and hydroxyl
atoms, they should face each other. Why should they face each other? I'll tell you just in a second. So this is not the correct orientation. The correct orientation would look something like this. So I'll draw the alcohol as it is, but instead of drawing the C double bonded to OOH right here, I'm going to draw the C double bonded to OOH right here so that they can face each other. And then I just complete the carbons. Uno, dos, right? I've completed the carbons. Now this is the correct orientation. Why? Why is this the correct orientation? Because what will happen is the alcohol will lose a hydrogen and the carboxylic acid will lose its OH. The alcohol loses the H and the carboxylic acid loses the OH. And what happens when H and OH is lost? What happens when H and OH is lost? Sir, it makes your beautiful water. This is gonna make H2O. तो इसलिए जब एस्टर की फॉर्मेशन होती है, यू नॉट जस्ट ओनली गेट एन एस्टर, यू ऑल्सो गेट वाटर. दैट इज द रीजन वाई दिस इज कॉल्ड ए कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन में अ स्मॉल मॉलिक्यूल इज ऑल्सो मेड है. पढ़ते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन. तो वाटर इज फॉर्म. अब एस्टर कैसे बनेगा? सर एच और ओ एच निकला, you literally draw these, you literally bond these structures together. That's it. That's literally how you draw the structure of the ester. ये हमारे पास beautiful ester बन गया. आपने सिर्फ क्या करना है, the carboxylic acid functional group जो ये C double bonded to OH है, carboxyl है, ये इस OH का आमने सामने होना चाहिए. Why? Because H2O must be eliminated. अब H2O कैसे eliminate होगा? The alcohol loses the H and the C double bonded to OH, this will lose the OH. तो इधर से H निकलेगा, इधर अब देखें H इधर से तो नहीं निकल सकता ना. It must come into contact with this OH. हरीम, it must come into contact with this OH. अब OH का शक्ल ही उधर उस तरफ है, तो मैं इसको जरा फ्लिप बनाऊंगा. मैं इस H को और इस OH को आमने सामने बनाऊंगा ताकि the H2O can easily be lost and you get water, right? And then once you get your water, अच्छा सवाल पैदा होता है सर, will the carboxylic acid always lose the OH and will the alcohol always lose the H? Absolutely. इसकी reason क्यों है? इसकी reason आप A levels में पढ़ते हो when you study about pi bonds and delocalized electrons. वो आप A levels में पढ़ते हो. But for now, just understand that the carboxylic acid will always lose the OH and the alcohol will always lose the H. क्यों? वो आप A levels में पढ़ोगे. पाई बॉन्ड्स के पीछे इसकी कहानी है. nobody cares about that. ठीक है? तो अब हम इसको आमने सामने शक्ल बना लेते हैं इनकी बिल्कुल. और the carboxylic acid lost the OH, the alcohol lost the H, you have H2O and you literally join these two together. अब the question is how do you first name them? देखिए, जब केमिस्ट्री में आप कहते हैं कि अल्कोहल से हाइड्रोजन चला गया, जब भी केमिस्ट्री में आप एक हाइड्रोजन काट के बात करते हैं, whenever in chemistry you talk about one hydrogen less, right? अगर अल्कोहल का फॉर्मूला है, let's suppose ethanol है, which is जितने कार्बन है, हाइड्रोजन आर ट्वाइस द नंबर ऑफ दैट OH, right? तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को कम करूंगा, तो दिस अल्कोहल नेम is gonna go into the naming of alkyl. Alkyl अपनी एक चीज नहीं, it's just a naming way. It's just a method of naming. सर क्या मतलब है? सर its name was ethanol. इसका नाम था एथेनॉल. जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक हाइड्रोजन कम होता है किसी भी कंपाउंड से, किसी भी मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन कम करके मैं बात करता हूं, सो द नेम चेंजेस टू एल्काइल. ठीक है जी. तो आईयूपैक ने ये कहा हुआ है. तो एथेनॉल से आपके पास ethyl, eth लिखेंगे and sir it will be followed by a y. Alk will be replaced with the number of carbons in the alcohol. तो alk क्या था? ethanol था. तो eth means 2 carbon. तो this alk bit was going to be replaced with eth and the yl will just drop down. तो alcohol का नाम क्या हो जाएगा? इस ester में alcohol का नाम क्या हो जाएगा? The name of this alcohol is going to become not ethanol but now it's going to be called ethyl. Now it's going to be called ethyl. Sir carboxylic acid का नाम कैसे बदलेगा? It was first propanoic acid but now it will become the ATE, right? So propanoic acid, say it was first propanoic acid but now the name for it will go into the IC and acid was going to be cut and you're going to get ATE. So it's going to be ethyl propanoate. बिल्कुल जी, ये एस्टर्स की नेमिंग है. तो नेमिंग हम एस्टर्स की कैसे करते हैं? इन समरी हम नेमिंग कैसे करते हैं? अल्कोहल का नाम कन्वर्ट हो जाता है into the alkyl bit because it loses the hydrogen. याद रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एक हाइड्रोजन कम करके हम बात करते हैं, आगे जाके इसकी फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी व्हेन यू स्टडी आइसोमेरिज्म. लेकिन एक हाइड्रोजन काट के जब भी आप बात करते हो तो नाम बदल जाता है. नाउ यू कॉल इट द एल्काइल ग्रुप, राइट? तो अब ये अल्कोहल से एल्काइल बन जाएगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग क्या हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड विल गो इनटू द कार्बोक्सिलेट नेमिंग, राइट? तो कार्बोक्सिलेट का क्या मतलब है? अगर आपके पास सर एथेनॉल था
ethanol tha, so now it's not going to be called ethanol. Now it will become eth, and it's going to be followed by a YL because the alcohol lost a hydrogen, right? और कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा जनाब कार्बोक्सिलेट, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो है वो कार्बोक्सिलेट में चेंज होएगा, which means if you had propanoic acid, if you had propanoic acid, the IC and acid is gonna go away and it's gonna be followed by ATE. जैसे हम सॉल्ट जब बनाते थे तो प्रोपेनोइक एसिड की जगह प्रोपेनोएट हो जाता था। तो इस एस्टर का नाम क्या होगा? इस एस्टर का नाम होगा इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है जनाब। नाउ लेट्स फर्स्ट लर्न हाउ टू नेम आर एस्टर्स, और बाद में हम पढ़ेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। ठीक है जी, लेट्स फर्स्ट नेम आर एस्टर्स। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज यू हैव मीथेनोइक एसिड and you have an alcohol which is ethanol. Sir, what is the name of this ester? ड्राइंग बाद में सीखेंगे, पहले नाम बताएं। बनाए तो जरूरी है, ओरिएंटेशन में बनाएं, आमने सामने, बिल्कुल जी आमने सामने बनाना होगा। आमने सामने ना, मैंने बताया इफ इट्स नॉट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन तो फिर ये रिएक्शन ही नहीं होगा ना। कार्बोक्सिलिक, दिस C double bonded to OH should face the OH of the alcohol. The carboxylic acid atoms should face the OH of this alcohol in order for that H2O to be lost है। और इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, पानी बनता है ना। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले ये भी लिख लें। What is meant by condensation? ये एग्जाम में पूछता है, what is meant by condensation reaction? It's a ditto definition. What is meant by condensation reaction? हाँ जी, when two or more molecules, when two TWO होता है ना, when two or more molecules join to make a larger molecule with the loss of a small molecule है। और इस केस में व्हाट इज दैट स्मॉल मॉलिक्यूल विच इज बीइंग लॉस्ट? व्हाट इज दैट स्मॉल मॉलिक्यूल विच इज बीइंग लॉस्ट? Sir, the small molecule that is being lost in this case is water. But a condensation reaction happens when two or more molecules, देखिए ये छोटे molecules थे, ये दो अलग अलग छोटे molecules थे, now it has made a larger molecule. So what's a condensation reaction? When two or more molecules join together to make one large molecule by the elimination, or you could say with the loss of a small molecule, which in this case is H2. The carboxylic acid loses the OH and the alcohol loses the H. That is the reason why the alcohol's naming go into ethyl. Whenever in organic chemistry we say that NH has been reduced, there's a reduction in just one hydrogen, then we change the naming from whatever the family is to the naming of alkyl. Alkyl in itself is not a family, बस सिर्फ एक हाइड्रोजन, जिस मॉलिक्यूल में भी आप एक हाइड्रोजन कम करके बात करते हैं तो इट इज नेम्ड एज द alkyl ग्रुप है। तो ये फैमिली ये नहीं है, बस सिर्फ एक नेमिंग का तरीका है। ठीक है जी। अच्छा जी, मीथेनोएट इथाइल एब्सोल्युटली रॉन्ग। याद रखिएगा, जब आप कार्बो एस्टर्स की नेमिंग करते हैं तो हमेशा पहले नाम एल्कोहल्स का आता है और फिर नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है, राइट? तो पहले नाम एल्कोहल्स का आता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मर्जी हो। ठीक है जी। सो हाउ डू यू नेम दिस? सर, वी नो दैट एथेनॉल is going to lose the hydrogen, so it's going to be called what? It's going to be called ethyl. अच्छा, देखो अविनेश, इफ यू हैव इनकरेक्ट स्पेलिंग्स यू आर गोना गेट 0 मार्क फॉर इट। ठीक है जी। तो एथ देखिए एल्काइल बनता है। एल्काइल क्या होता है? द एल्क बिट लिटरली इज गोना बी रिप्लेस्ड बाय द प्रीफिक्स व्हिच इज द नंबर ऑफ कार्बन्स व्हिच इज एथ, एंड द वाई एल इज जस्ट गोना ड्रॉप डाउन, सो इट्स गोना बी कॉल्ड इथाइल। And what's the name of the carboxylic acid? What's the name? Methanoic acid, right? So what will it change into? It's going to become methano. Instead of the IC and acid, it's going to become ethyl methanoate. है खत्म। Next, बताएं जी, spellings बताना शुरू करें। Sir, you have propanoic acid and you have let's suppose methanol. Hey, what's the name? Shabash. What's the name? Sir, the alcohol loses the H. That's why it's gonna be, and the carboxylic acid loses the OH, right? So when the alcohol loses the H, we are gonna call it not methanol. It'll become methyl, meth, and while it becomes the alkyl, right? So it's gonna be called methyl. The alk bit is gonna be replaced with the number of carbons, which is meth, one carbon, and is gonna be called what? Is gonna be called what? Instead of propanoic acid, it's gonna be propanoate. That's how you literally name them. कितना आसान है यार। Sir, what would be name of the ester with ethanoic acid and ethanol? हाँ जी लिख लें, ethanol plus ethanoic acid। हाँ जी, what would be the name? Alcohol का नाम पहले आता है, so it's gonna be what?
The alcohol loses the H, so it's going to be called ethyl, and ethanoic acid की जगह ethanoate. हाँ? ethyl ethanoate. हाँ जी, सिंपल है, मुश्किल है, आसान है, आसान है. चलिए जी. टेल मी कि अगर 1 कार्बन अल्कोहल हो और 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, what's the name of the ester that it forms? We add the ATE. बिल्कुल जी. Instead of the IC and acid, you add the ATE. जी जी बिल्कुल, sulfuric acid is the catalyst. Alcohol always is the first part of the name. No matter how the structure looks, alcohol is always the first part of the name. It's gonna be ethyl ethanoate, methyl ethanoate. यार एक तो spelling गलत है यार. आमना, it's not METHAYL. It's METHYL. Meth and the YL drops down. Eth and the YL drops down. Prop and the YL drops down. So please. No, Avinish, it's not ethyl methanoate because a 1 carbon alcohol is methanol. So the name of methanol is going to go into methyl because that loses the hydrogen. And 2 carbon carboxylic acid is ethanoic acid. So it's going to be methyl ethanoate. Come on, yeah. हाँ जी, बाकी सारी सही हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. स्पेलिंग गलत नहीं करनी. स्पेलिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेलिंग का इन्वर्स करने की क्यों इन्वर्स किया? नो, इन्वर्स इन्वर्स नहीं किया. अच्छा, a 1 carbon carboxylic acid and a 2 carbon alcohol. हाँ जी. इनके लिए कंडीशंस वैसे क्या चाहिए? So the conditions that you require is what? It's an acid, which is what? Conc sulfuric acid, conc H2SO4, and a temperature of 200 degrees Celsius, or you heat it till 200. So what's the name gonna be? Sir, 1 carbon carboxylic acid and 2 carbon alcohol. Remember, in the name, the alcohol always comes first. So it's that's the nomenclature for it. So it's gonna be ethyl, and this was a 1 carbon carboxylic acid. So it was methanoic acid. Now the name is gonna be. देखिए अविनेश, आपकी स्पेलिंग्स बहुत खराब है यार. किडो क्या हो गया? मीथेन, देखिए मीथेनोइक एसिड. हाउ डू यू नेम मीथेनोइक एसिड? इसमें स्पेलिंग का मार्क कटेगा ही कटेगा. इफ यू राइट द रॉन्ग स्पेलिंग, इफ यू राइट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, यू गेट 0 मार्क्स फॉर इट. इट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें तो बिल्कुल पेट स्पेलिंग्स हैं. इट्स, देखिए मीथेन की स्पेलिंग होती थी ई की जगह हम क्या डालते थे? OIC एन एसिड. सो इट्स मीथेनोइक एसिड. सो इंस्टेड ऑफ द IC एन एसिड, नाउ यू राइट ATE. इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, एग्जामिनर मार्क काटेगा. सो इट्स गोना बी मीथेनोएट. इट्स इथाइल मीथेनोएट, नॉट मीथेनोएट. इट्स मीथेनोएट. हाँ, आपने लिखा है METHE. इट्स नॉट THE, इट्स THANOATE. ठीक है जी. हाँ जी, अब सही है. बिल्कुल सही है, अब सही है, सही है, सही है. अपनी शक्ल तो देखता रहा हूँ ना, है? अच्छा जी. आगे बढ़े. डिड यू गाइस लर्न हाउ टू नेम देम? कि दो तीन और दूं? अच्छा बताएं. 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 4 कार्बन अल्कोहल. हाँ जी, नाम बताएं. नाम और नेम ऑफ दिस एस्टर. शाबाश. फिर मैं आपको सिखाना, बनाना भी सिखाता हूँ, आइडेंटिफाई करना भी, सब कुछ सिखाता हूँ. चिल करें. ब्यूटाइल propanoate. Let's see if it's butyl propanoate. Sir, 4 carbon alcohol is butanol, and because it will lose the hydrogen, now it will be the alkyl group. So but alkyl क्या होता है? Alkyl क्या होता है? The alk bit is going to be replaced with the prefix, and the yl is just going to drop down. So butyl बिल्कुल सही है. And a 3 carbon carboxylic acid is propanoic acid, so it's going to now change into the carboxylate name. So it's going to be propano. Instead of the IC and acid, you're going to add the ATE. Khatam. Butyl propanoate. That's how you name. That's how you literally name the carboxylic acids. खत्म. सॉरी, दी एस्टर्स. खत्म खत्म खत्म. आसान 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 आसान. अब आ जाएं. अब आपको मैं सिखाता हूं कि ये बनते कैसे हैं और क्या हिसाब किताब है. देखिए जी, देखिएगा जी. लेट्स मेक अ 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ए 2 कार्बन, और फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बनाना सिखाऊंगा. 2 कार्बन एल्कोहल एस्टर. नाम भी बताएं और बनाए भी, खुद बनाएं. शाबाश. लेट्स मेक 2 कार्बन carboxylic acid and 1 कार्बन alcohol. Sir, let's make a 3 कार्बन alcohol and 2 कार्बन carboxylic acid, 2 कार्बन alcohol and 2 कार्बन carboxylic acid.
हाँ जी, बनाना शुरू करें, आ जाए आ जाए। हाउ डू यू मेक देम, लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग देम सर। वन कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टू कार्बन अल्कोहल। देखिए यूजुअली क्या होता है, यूजुअली आप एसिड का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, फिर आप अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी आप जो मर्जी पहले बनाए, बट दे मस्ट बी फेसिंग ईच अदर। यूजुअली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हम पहले बनाते हैं, नाम अल्कोहल का पहले आता है, स्ट्रक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड पहले लिखते हैं। दैट्स जस्ट इफ यू वांट टू पिन पॉइंट हर चीज का बिल्कुल कचूमर निकाले तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है जी, चलिए जी। वन कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। So let's draw the one carbon carboxylic acid. For carboxylic acid, पहले हम C double bonded to OH draw करते हैं sir, and then it's a one carbon carboxylic acid. So complete the bonds. You have three bonds already made. The last bond would obviously be with hydrogen. There will be no more carbons, right? तो ये मेथनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। एंड टू कार्बन अल्कोहल इज कॉल्ड एथेनॉल। सर तो आप एथेनॉल बनाए बिल्कुल अल्कोहल की तरह, बिल्कुल एल्कीन का स्ट्रक्चर बना के, यू नो दैट यू हैव टू रिप्लेस अ हाइड्रोजन विद द OH। अब मुझे बताएं OH इधर डालूं कि OH इधर डालूं, at A position or at position B, at position A or at position B। स्ट्रक्चर की समझ नहीं है बेटा, ये स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। एट पोजीशन ए, राइट, व्हाई, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द बोथ द कार्बोक्सिलिक एसिड COOH and the alcohol OH, they must be facing each other। why, because the alcohol loses the H and the carboxylic acid loses the OH। जनाब बनाए जी बनाए, the alcohol lose, ये रफ वर्किंग है। और अब सर इसी को हम लेके जाते हैं आगे, डुप्लीकेट करते हैं। The alcohol loses the H and the carboxylic acid loses the OH to give what? To give water। इससे पानी बनता है, and just टक, ये ले, इतना आसान, बस हलवा। दिस इज द कार्बोक्सिल, दिस इज द एस्टर दैट हैज फॉर्म्ड, दिस इज द एस्टर दैट हैज फॉर्म्ड, डन। अच्छा जी, next two carbon carboxylic acid। So it's gonna be two carbon carboxylic acid। So you first of all draw foot, in order to draw the structure of carboxylic acid हम सबसे पहले C double bonded to OH बनाते हैं, and then two carbons हैं, तो I'm gonna write one more carbon and complete all the bonds, that's gonna be hydrogens। खत्म, ये हमने कल सीखा हुआ है। one carbon alcohol, so one carbon alcohol is methanol। सर इसका नाम वैसे क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, वन कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टू कार्बन अल्कोहल, इट्स गोना बी इथाइल मीथेनोएट। खत्म। अच्छा जी, टू कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड दैट विल बी एथेनोएट, एंड वन कार्बन अल्कोहल दैट्स मिथाइल, सो मिथाइल इथेनोएट। खत्म। अच्छा जी, तो अल्कोहल OH किधर लगाऊं, इधर लगाऊं OH कि इधर लगाऊं OH? ऑब्वियसली द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल शुड फेस ईच अदर। खत्म। हाँ जी, यू शुड राइट H2O, बिल्कुल आप इधर H2O लिखे, मैं H2O नहीं लिख रहा क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ बनाना। अच्छा जी, क्या होगा, द कार्बोक्सिलिक एसिड विल लूज द OH एंड द अल्कोहल लूजेस द H हमेशा। सर ये गया, और पाइन, चलो इसको डुप्लीकेट कर देते हैं पहले। Let's duplicate this beauty right here। And obviously, what are the conditions? Conc sulfuric acid, conc H2SO4, and you need to heat till 200 degrees Celsius। अच्छा जी, तो होगा क्या, द कार्बोक्सिलिक एसिड लूजेस द OH एंड द अल्कोहल लूजेस द H, जनाब वाले ये निकले, और अब ये दोनों आपस में बॉन्ड होंगे, दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। सर वी हैव टू राइट प्लस, लिख लें यार, प्लस लिख लें, ये लो प्लस, ये लो प्लस, खुश। मैं तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आपने रफ वर्किंग करनी है, वो आपसे ये नहीं मांगेगा, वो आपसे फाइनल एस्टर का स्ट्रक्चर मांगेगा। नेक्स्ट, थ्री कार्बन अल्कोहल एंड टू कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, बनाने से टू कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, and 3 carbon alcohol, so 2 carbon carboxylic acid we first of all draw the C double bonded to OH, and then since it's a 2 carbon carboxylic acid, I'll bond it with another carbon and then just complete the bonds with hydrogens, and a 3 carbon alcohol, so meth, eth, pro, and propanol should look something like this, the OH should face। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं इसको। Is this correct or is this wrong? Is this correct or is this wrong? It is absolutely wrong. Why? Because you're saying the carbon is bonded to the hydrogen, which is bonded to the O. That's wrong. You have to say that the carbon is bonded to the oxygen and the oxygen is bonded to the H. Oxygen दो bonds बनाते हैं ना, hydrogen तो एक bond बनाता है। ठीक है जी। अच्छा, so what's gonna happen? How are you gonna draw the structure of this beautiful ester? Sir, the carboxylic acid loses the OH and the alcohol loses the H। इसको पहले डुप्लीकेट कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं राइट हियर। ओहो, ये तो बन नहीं रहा, इधर कर देते हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड लूजेस द OH, द अल्कोहल लूजेस द H। खत्म, बिल्कुल सिंपल, हलवा, गपशप। ये एस्टर्स क्या थे बताएं जी, और इन दोनों को करीब कर लें, करीब करीब से सिंगल हैं। खत्म, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्यूटीफुल एस्टर। आसान है, ये मुश्किल है, ये एस्टर्स की स्ट्रक्चर थे, पता नहीं आप लोग को इसमें क्या मुश्किल लगता था, क्या मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है।
करते हैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी। हलवा हलवा सर, 2 कार्बन, ये खुद करें, 2 कार्बन का अल्कोहल। अब इससे मैं आपको मुश्किल चीज अब सिखाने लगा हूँ, सबर सबर सबर, चिल चिल। आई टीच यू समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। ये एस्टर्स की फॉर्मेशन तो है, लेकिन आई विल टीच यू हाउ टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड द अल्कोहल इन द एस्टर इफ यू जस्ट गिवन द स्ट्रक्चर फॉर इट। हाँ जी, बनाए जी। 2 कार्बन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता हूँ। 2 कार्बन अल्कोहल भी बना दे, कोई कोई फर्क, आप बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हैं। पहले आप 2 कार्बन अल्कोहल स्पेट वे, ये कि यू ड्रॉ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन द स्ट्रक्चर फर्स्ट, क्योंकि देखें वो कहते हैं यार नाम में हमेशा अल्कोहल पहले आएगा तो स्ट्रक्चर मेरा पहले बनेगा। बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपकी किताब में लिखा है, लेकिन मार्किंग स्कीम और इन चीज़ों के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। ये बिल्कुल फजूल बकवास बात है, आप दोनों में से कोई भी पहले बना सकते हैं। मैं अल्कोहल बना लेता हूँ पहले। ये देखिए अल्कोहल बनाया। नाउ द सी डबल बॉन्डेड टू ओ ओ एच शुड फेस द अल्कोहल, राइट? And then that's my beautiful ethanoic acid. So ethanoic acid is gonna face the alcohol. The carboxylic acid loses the OH, the alcohol loses the H, and voila. That's this beautiful structure. खत्म। ये था आपके सारा एस्टर, ये एस्टरिफिकेशन कुछ भी नहीं था। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू द ब्यूटी। अब जरा हम इधर बात कर लेते हैं। लेट मी टेल यू हाउ टू डू रिवर्स। मरियम कह रही बस, ओए 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 क्या हो नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, मरियम मरियम, हौसला हौसला हौसला। अच्छा, नाउ आई वांट टू टेस्ट यू गाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर? सर अब तो हम पहले बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। व्हाट यू नीड टू नोटिस इज यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट थिंग्स, राइट? और अगर आप नोटिस करें, अब इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये आपके ए लेवल में बहुत काम आएंगी ये बातें। ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए। विच बिट इन दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द एसिड, विच बिट केम फ्रॉम द एसिड इन दिस स्ट्रक्चर। देखिए जिधर कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन था, इसको हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। दिस कार्बोनिल कार्बन एंड ऑल द एडजेसेंट एटम्स, all of this bit will always come from the acid. This bit will always come from the acid where the carbonyl carbon is bonded. और जिधर O bonded है, this bit will always come from the alcohol. देखिए डबल बॉन्ड किस में होता है? कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन इज इन अल्कोहल और इज इट इन द एसिड? ये बहुत जरूरी है समझना इधर। इज इट इन द अल्कोहल और इज इट इन द एसिड? कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, इज इट इन द एसिड or is it in the alcohol? It's obviously in the acid, right? It's not in the alcohol. So remember, wherever you have carbon double bonded to oxygen, this bit and all the adjacent carbons or all the adjacent atoms, all of this structure has come from the acid, और उसका right जो structure है वो सारा alcohol से। ये जानना क्यों जरूरी है थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए carbon double bonded to carbon, this bit will come from the acid, and the O bit right here, this will come from the alcohol. This bit will come from the acid and this will come from the alcohol. Wherever the carbon double bonded to oxygen is or all the adjacent atoms, this structure, ये partial structure acid से आता है, क्योंकि acid में carbon double bonded to oxygen होता है ना। तो instead of drawing everything again, मैं simply क्या कर सकता हूँ, मैं कहूँगा this carbon double bonded to oxygen and all the adjacent atoms, this came from the acid, and obviously consequently this came from the on the other hand, this came from the alcohol. अब मुझे आप ये O तो बॉन्ड हुआ हुआ है ना, ये अल्कोहल ने H लूज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड ने OH लूज किया और ये एक बॉन्ड बना है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये एसिड से आया ये बिट और ये अल्कोहल से आया है। अब मुझे आप एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं, ये 2 कार्बन, हम सिर्फ कार्बन को काउंट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज नाउ वी नीड कार्बन इन ऑर्डर टू नेम देम। दिस वॉज व्हाट अल्कोहल? मेथ एथ प्रोप। दिस इज विच अल्कोहल? प्रोपानोल। ये प्रोपानोल अल्कोहल से बना था। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर? प्रोपाइल एल्काइल नाम आ जाएगा, डन। और ये कौन सा एसिड था? मेथ एथ, 2 कार्बन है तो ये इथेनोइक एसिड से बना था। दिस वाज मेड फ्रॉम इथेनोइक एसिड जनाबे वाला। तो ये क्या है? प्रोपाइल इथेनोएट। खत्म। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू, आसान। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बताएं जी। हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर? हाँ जी, we know that this carbon double bonded to oxygen, this must have come from the acid because the acid has the C double bonded to O, the acid has carbonyl and all the adjacent atoms, ये सारा acid से आया था। और बाकी ये सारा alcohol से था, इतने carbons acid में थे और इतने carbons alcohol में थे। So if there were 4 carbons in the alcohol, it's going to be called butanol. That was the alcohol's name. And if there were 3 carbons in the acid, it would be meth eth prop. This was propanoic acid. Done, sir.
And if now I were to name if I were to name this ester, we know that the alcohol name changes into butyl alkyl name में change हो जाता है और ये 8 हो जाता है. So propanoic acid से propano and then it follows the ATE. So it's butyl propanoate. हलवा आसान मुश्किल आसान मुश्किल आसान मुश्किल आसान है ना. बहुत आसान है. बहुत आसान है. बहुत आसान है. अच्छा नेक्स्ट. नेक्स्ट टू इजी. आप लोग कह रहे थे सर एस्टर्स नहीं आता. मुझे तो नहीं पता कि एस्टर्स में क्या मुश्किल है. नेक्स्ट. सी 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 ओ सी सी. हाँ जी. इसकी नेमिंग बताएं सर. शाबाश. खुद करें रट्टा नहीं मारना खुद करें. हाँ जी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर राइट हियर. आउच. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर. शाबाश. प्रोपाइल ब्यूटेनोइड देख लेते हैं. सर वी नो दैट दिस इज द कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड दिस बिट मस्ट हैव कम फ्रॉम द एसिड. तो ऑल दिस बिट एंड ऑल द एडजेसेंट एटम्स ये सारा एसिड से आया था. एंड दिस बिट एंड ऑल द एडजेसेंट एटम्स जो ओ के लेफ्ट में दिस विल कम फ्रॉम द अल्कोहल. तो इसका नाम क्या. कितने अल्कोहल्स हैं. 3 कार्बन अल्कोहल. सो इज गोना बी मेथ एथ प्रोपाइल. और इसका नाम सर मेथ एथ प्रोब्यूट. सो प्रोपाइल ब्यूटेनोइक एसिड से आता है तो ब्यूटेनोएट. 1008. सर मुझे आप बना के दें इसका मोनोमर्स बना के दें. मोनोमर्स नहीं सॉरी इसके स्ट्रक्चर्स बना के दें कि किन दो चीज़ों से ये बने हुए हैं. मैं भी फिलहाल टेक्निकल टर्म्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए. किन दो चीज़ों से बने हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाए. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द टू थिंग्स विच इट इज मेड अप ऑफ. तो स्ट्रक्चर बनाए किसका. मेथ एथ प्रोपनोल से बने. तो प्रोपनोल का स्ट्रक्चर बना के दें एग्जामिनर को. ये नहीं सर एग्जामिनर ये इसमन उस चीज से बना है. एंड मेथ एथ ब्यूटेनोइक एसिड से बना है. ये ले खुश हो जा. Draw the displayed structure. Draw the displayed formula. Draw the displayed structure. Displayed का मतलब है कि इस O और इस H को शो करो पूरा का पूरा. इस O और इस H को शो करो पूरा का पूरा. है. सो ये इन दो चीजों से बना था. मेथ एथ प्रोपनोल से बना था राइट हियर. मेथ एथ ब्यूटेनोइक एसिड से बना था राइट हियर. सिंपल. आसान मुश्किल. अच्छा ये जो लिंक बनता है दोनों के बीच में. व्हेन दिस OH लीव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हेन दिस H लीव्स द अल्कोहल. ये जो लिंक बनता है ये देखिए ये H2O निकला ना. नया लिंक कौन सा बन रहा है. दिस ये लिंक ये देखिए C डबल बॉन्डेड टू O इज मेकिंग अ लिंक विद दिस O. C डबल बॉन्डेड टू O इज मेकिंग अ लिंक विद दिस O. तो ये जो नया लिंक बनता है ये देखिए ये जो कपुश करके नया लिंक बनता है कौन सा नया लिंक है. सर ये नया लिंक है. ये C डबल बॉन्डेड टू O is bonded with this O. ये एक नया लिंक है. इस लिंक को एस्टर लिंक कहते हैं. कौन सा लिंक कहते हैं. एस्टर लिंकेज. ठीक है. दिस इज द एस्टर लिंकेज एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन एस्टर. इस लिंकेज की वजह से इसको हम एस्टर कहते हैं. तो दिस इज योर ब्यूटीफुल C डबल बॉन्डेड टू O O. खत्म. आसान 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 मुश्किल आसान मुश्किल. एक चार्ट अकाउंटेंट आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है. कैसे लग रहा है आपको. सर व्हेन एसिड कनेक्ट्स इजी इजी. अच्छा मुझे सारे एस्टर जितने एस्टर लिंकेजेस है ना ऊपर सब के इर्द गिर्द सर्कल बना दे. शाबाश. सब एस्टर लिंकेज इज जस्ट दिस C डबल बॉन्डेड टू O. ये एक एस्टर लिंकेज क्योंकि ये एक नया लिंक बनता है जब पानी निकलता है. सो ड्रॉ द सर्कल अराउंड द एस्टर लिंकेज. ये लो ये C डबल बॉन्डेड टू O एंड O है. ये एक एस्टर लिंकेज है COO. दैट्स द एस्टर लिंकेज. सर ये नहीं. सर पता नहीं स्कूल में क्या पढ़ाते हैं झक मारते हैं कुछ समझ नहीं आता. 3 सालों से पैसे ले रहे हैं किस चीज़ के ले रहे हैं. वो मुझे भी नहीं पता. इट्स अ बिजनेस ना. बिजनेस स्कूल इज. देखिए बिजनेस का टारगेट क्या होता है. इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने हो आप लोगों बाढ़ में जाए उनके लिए दे डोंट गिव अ शिट. सर ये एस्टर लिंकेजेस है खत्म. ये सर एस्टर मुश्किल था. अच्छा अब आ जाएं. अब आपको मैं और भी इसको मजीद पढ़ाता हूँ सर. और मजीद पढ़ें. ये देखिए दैट्स माय एस्टर लिंकेज COO. दैट्स द न्यू लिंकेज दैट फॉर्म्स. इसलिए मैं इसको एस्टर लिंकेज कह रहा हूँ. C डबल बॉन्डेड टू OO. दैट्स द एस्टर लिंकेज. ये इस देखिए केमिस्ट्री में ना C डबल बॉन्डेड टू O को कार्बोनिल कहते हैं. सो द कार्बोनिल बॉन्डेड विद दिस O दिस इज द एस्टर लिंकेज. खत्म. अब आ जाएं इधर एक और कहानी करते हैं. मुझे आप बना के दें. क्या मुझे आप ये बताएं CH3 CH2 COO CH3 सॉरी CH3OO CH2 CH3 सर CH3 CH2 C सॉरी
OCO, CH2, CH3. We need to make these two structures. But before we make these two structures, I want to ask you, क्या ये दोनों structure same है? क्या ये दोनों structure same है? वैसे नजर भी आ रहा है ये COO है, ये OCO है. It's not same. But before I teach you this structural formula, let me first write the structural formula of all these esters for you. Esters का structural formula कैसे लिखते हैं? Same to same, same to same. देखिएगा जी, शुरुआत कर लें, शाबाश, इधर से शुरू कर लें, शाबाश, लेफ्ट से शुरू कर लें. CH3 लिखना शुरू कर दो. CH3, then what happens? This is a CH3 which is bonded to a C which is bonded to NO, and this C is bonded to NO. तो मैं कह सकता हूँ CH3 is bonded to a C which is bonded to NO which is bonded to another O, and then it is bonded to CH3. The O is bonded to CH3. CH3 bonded to a C which is bonded to an O which is bonded to an O which is bonded, and this O is bonded to a CH3. This O is bonded to a CH3. खत्म. That's the structural formula. Next, sir, CH3, गाना गाना गाना, हर बंदा गाना गाए. CH3 bonded to a C, bonded to an O, bonded to another O, bonded, this O is bonded to a CH2, CH2, CH3. So I can say you have CH3, C, and this C is bonded to an O, bonded to an O, which is bonded to a CH2, which is bonded to a CH2, which is bonded to a CH3. सर ना करें घर वाले साथ साथ, घर वाले साथ हैं, यार माफ करो, पेरेंट्स सोचेंगे ये कौन सा टीचर है, हैं? अच्छा, देन ये नेक्स्ट शाबाश. CH3 which is bonded to a CH2 which is bonded to this CH2, this C is bonded to an O which is bonded to a C which is bonded to an O. देखिए पहले क्या आ रहा है, CH2 bonded to an O which is bonded to a C which is bonded to this O, and then this C is further bonded to CH3. खत्म जी. अच्छा, नेक्स्ट और कितने स्ट्रक्चर्स ये देखें. CH3 which is bonded to a C bonded, अच्छा शाबाश शाबाश. CH3 bonded to a C bonded to an O bonded to an O, this O is bonded to CH2 which is bonded to CH2 which is bonded to CH3. खत्म. नेक्स्ट, CH3 which is bonded to a CH2, ये देखें CH3 है ना, CH3 bonded to a CH2 which is bonded to the C which is bonded to the O which is bonded to the O, and this O is bonded to a CH2 bonded to a CH2 bonded to a CH2 bonded to a CH3. है, आसान है. That's how you literally write the structural formula. अब जरा structural formulas लेते हैं, और अच्छा ये भी लिख लें, ये खुद लिखना है, चलें ये खुद करें, ये खुद करें, शाबाश, ये खुद करें. आई लव दिस, इट इज सो इजी. माँ हलवा है, मैं आपको पहले बताया था. मरियम दैट्स ऑसम. फिर भी अपने दोस्तों को मरियम ने नहीं बताना. मरियम ने कहना क्यों क्यों पढ़े, पेशावर की FC वाले बच्चे, आप यूर फ्रॉम पेशावर राइट. मरियम कह रहे क्यों बताऊं इनको, खुद ढूंढना चाहिए था, क्यों बताऊं. मरियम सोची कितना जालिम है. स्प्रेड पॉजिटिविटी मरियम, पॉजिटिविटी. अच्छा जी, शाबाश. शाबाश शाबाश शाबाश. होमोलोगस सीरीज भी करने हैं आज. होमोलोगस सीरीज आज करें. वैसे होमोलोगस सीरीज बहुत छोटा है, 10 मिनट का काम है टोटल. कल हम फिर आइसोमेरिज्म पूरा करेंगे. आई वॉन्ट टू डू होमोलोगस सीरीज टुडे, प्लीज. आज मेरे में एनर्जी है, आई फील गुड टुडे. हाँ जी, करें, शाबाश. लेट्स स्टार्ट. CH3 bonded to a CH2 bonded to a CH2. I sound like a Kari Saab. Bonded to this CH2 is bonded to a C, or is it bonded to the O? C or O or C or O. This CH2 is bonded to the O. So in the structural formula, O should come first. Which is bond? This O is bonded to a C. So this O is bonded to a C. This C is bonded to this O, which is bonded to this O, and then you have a CH2, CH2, CH3. खत्म. टेंटने दिल दिया पैसों का, कि क्या कहेंगे यार अम्मी अबू आके, क्या सोचेंगे. मैं कभी कभार सोचता हूँ व्हाट वुड पेरेंट्स थिंक. पेरेंट्स वुड थिंक दैट दिस सम काइंड ऑफ स्टूपिड स्टूडेंट हु इज टीचिंग दीस किड्स. आई स्वेयर टू गॉड, पता नहीं हमने क्यों यकीन कर लिया, क्यों यकीन कर लिया. मेरे बच्चों के नो स्टार्स है और नो डिस्टिंक्शन है, और हजारों, 100 के 100, हजारों हजारों, बहुत बहुत स्टार्स और एज हैं. अच्छा जी, नाउ आई वांट यू गाइस टू फर्स्ट टेल मी, आर दीज टू स्ट्रक्चर्स द सेम थिंग? Are these two structures the same thing? I would say, I would say, instead of giving me a yes or no answer, draw it for yourself. देखें इसमें भी 5 कार्बन्स हैं, 3
प्लस 2 5, एंड दिस इज 1 2 3 4 5, ये पांच पांच कार्बन है। तो आप सोचेंगे कि सर ये तो सेम स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल सेम है। बना के तो देखें, बना के तो देखें, बना के तो देखें, फिर आपको पता लगेगा। हाँ जी। चलो होमोलोगस सीरीज कल कर लेंगे, कोई नहीं, लेकिन ये बना के दिखाएं, फिर मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समरी देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑफिशियली ओवर। विद दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ओवर। अब आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, होमोलोगस सीरीज, छोटा सा टॉपिक रह गया, और जो आपके पास है, आपके पास जनाबे वाला वो एक छोटा सा टॉपिक रह गया, आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन। और नहीं ये तो बनाओ ना, और नहीं बच्चे, नहीं नहीं, हरी मिसिंग, इज इट इन द सेम, बनाओ, बनाओ, इज इट द सेम, बनाओ। ये चीजें अब टीचर्स नहीं पढ़ाते, और ये एमसीक्यूज में टेस्ट होता है, और ए लेवल्स के एमसीक्यू में भी ऐसी चीजें टेस्ट होती है। फिर आप कहेंगे सर, सर आई एम सेइंग इट्स नॉट द सेम। अच्छा दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके, हरी मिसिंग इट्स नॉट द सेम बिकॉज आई मेड इट, दैट्स ऑसम हरी। आज जाने की जिद ना करो, आजकल कौन सा अच्छा गाना निकला हुआ है कि वही हसन रहीम के गंदे बंदे का, ओ मेरी इरादा मुझको बना जा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन, ओ रे साजना। अच्छा मैंने आपके साथ ना एक काम करें, सिर्फ रमजान आने वाला है बट आईजीसीएसई इज स्टिल फ्री है व्हाट। अच्छा एक और बात है गाइस, मैं एक गाना गाऊंगा, मैं कहूंगा इस परचम के साए तले, और आप सबने कहना है हम फेल हैं, हम फेल हैं। ये मैं ओ लेवल से करता आ रहा हूँ, और फिर मेरे स्टार्स आ जाते हो, मेरे दोस्तों के खराब ग्रेड आते हैं, और फिर वो मुझे कुट देते हैं। तो मैं कहूंगा इस परचम के साए तले, चीख के आप लोगों ने घर पे बोलना है, हम फेल हैं, हम फेल। क्या अम्मी अबू भी कहें कि यार हमारे बच्चे तो पहले जहनी तौर पे ठीक थे, ये क्या हो गया, जहनी तवाज़ुन इनका हिल गया है। सॉरी यार, आई जस्ट अच्छा जी चलो, लेट्स मेक इट, दोज ऑफ यू आर सेइंग इट्स द सेम स्ट्रक्चर, देख लेते हैं सर, लेट्स ड्रॉ इट, CH3 which is bonded to a CH2। अब मुझे बताएं, CH3 which is bonded to a CH2 which is bonded to a C, and this C is bonded to the O which is bonded to the O, which, and this O, this stupid O is bonded to a CH2 which is bonded to a CH3। So this stupid O is bonded to a CH2 which is bonded to a CH3। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, इसमें कौन सा एसिड है और कौन सा अल्कोहल है। देखिए एग्जामिनर हमेशा ये सवाल पूछता है, which acid is this ester made from and which alcohol। My advice to all of you would be to make it first, please always make it first। इसमें ना बड़ों की बातों में नहीं, ये हिकमत है, तो ऑलवेज ड्रॉ इट फॉर यू सर। अब आसान हो गया, अब आसान है आइडेंटिफाई करना, और या तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आपको डायरेक्ट पता लग जाए, लेकिन हमेशा बनाया करें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। सर दिस द सी डबल बॉन्डेड टू ओ एंड ऑल द एडजेसेंट कार्बन, दिस केम फ्रॉम द एसिड, तो सर ये प्रोपेनोइक एसिड से बना है, ये प्रोपेनोइक एसिड से बना है, और ऑब्वियसली मेथ एथेनॉल से बना है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल। द अल्कोहल लूजेस द H एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड लूजेस द OH, सो इट गोज इनटू प्रोपेनोएट। इसकी नेमिंग क्या हो जाती है, प्रोपेनोएट, सर इथाइल प्रोपेनोएट, खत्म। अब इसके नीचे वाला बना है CH3, देखिए लेफ्ट से शुरू हो रहा हूं, CH3 which is bonded to the CH2। अब मुझे बताएं, this CH2 is it bonded to the O or is it bonded to the C? शाबाश। Is this CH2 bonded to the O or is it bonded to the C? It's bonded to the O. So CH2 is bonded to the O, which is bonded to the C, and this C is bonded to the O। अच्छा कुछ बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, सर ये ऐसे भी तो हो सकता है, ओ यू डम्बो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैडी ये आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड इज सी डबल बॉन्डेड टू ओ OH, सो इट लूजेस द OH, इट विल स्टिल बी सी डबल बॉन्डेड टू O। तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता सर, और बॉन्ड्स भी ऐसे नहीं पूरे होते, सो इट्स सी डबल बॉन्डेड टू राइट हियर, एंड देन इट इज CH2CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हाँ जी, मेथ एथ, ये एथेनॉल, दैट्स एथेनॉल, एथेनॉल से बना है, और ये केड़ी चीज है, ये केड़ी चीज है, मेथ एथ प्रोप, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड से बना था, बिल्कुल जी। तो अगर इसका नाम देखिए, एग्जैक्ट सेम थिंग, इट्स एग्जैक्ट सेम थिंग, जिसने कहा था डिफरेंट है बिल्कुल गलत कहा था, इट्स इथाइल मेथेट्रोप प्रोपेनोएट। बस यही चीज बतानी थी, बस यही चीज बनानी थी, कि जो बच्चे कह रहे हैं कि डिफरेंट है और जो बच्चे कह रहे हैं सही है,
ये देखें दोनों इज द सेम थिंग लिटरली। तो ओ सी ओ मैं लिख लूं, सी ओ लिख लूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। दे आर बिल्कुल नॉट डिफरेंट, बिल्कुल नाम दोनों की बिल्कुल सेम है। इट्स इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। सर बट हाउ आर दे डिफरेंट? नहीं, दे आर नॉट डिफरेंट। व्हेन डिड आई से इट्स डिफरेंट? मरियम सेज आई न्यू इट बट इजंट द स्ट्रक्चर डिफरेंट। और नहीं बच्चे, क्या हो गया? नाम दोनों का सेम है। याद रखो, आपको आगे आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। नाम जब तक सेम हो ना तो चीज वही है। दिस इज आल्सो इथाइल प्रोपेनोएट, दिस इज आल्सो इथाइल प्रोपेनोएट। आई डोंट गिव अ क्रैप अबाउट द स्ट्रक्चर, इट्स द सेम स्ट्रक्चर। सिर्फ एक को मैंने उल्टा के बना दिया। मैं अल्कोहल को ऐसे बनाऊं, या मैं इट इज एथेनॉल, और या मैं अल्कोहल को ऐसे बनाऊं, इट्स स्टिल एथेनॉल। और ये कल की क्लास में और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब एक और बनाने को कहूंगा। अब देखिएगा सर, देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए एग्जामिनर कहते हैं क्या ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है? बिल्कुल सेम चीज है। दिस इज आल्सो इथाइल प्रोपेनोएट, दिस इज आल्सो इथाइल प्रोपेनोएट, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। 0% फर्क, दोनों का नाम एक ही जैसे। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर, ओ दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर लिटरली द सेम थिंग। अच्छा, आगे बढ़े। CH3 एक बना ले मेरे लिए, CH3, CH2, OCO, CH2, sorry, CH3, and then you have CH3, CH2, COO, CH3। अच्छा जी, अब बनाए, अब दोनों को बनाए। अब देखिए इनमें भी, ये भी चार, देखिए ऊपर क्या था, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन थे। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन थे, ठीक है जी। अब इधर देखिए, यू हैव 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन है। अब कार्बन्स का सेम होना क्या ये मतलब है कि दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। एक दफा ये खुद बना के देखिए। सर मैं अपने पेपर पर आपका नाम लिख के आऊंगी, क्यों भाई, क्यों, क्या हो गया? चलिए ये बनाते हैं। CH3 which is bonded to a CH2, which is this CH2 is bonded to the which is bonded to the which is bonded to the C, which is bonded to the which is bonded to the CH3। खत्म। अब देखिए, this CH3 is bonded to a CH2, this CH3 is bonded to a CH2, which is bonded to the C, which is bonded to the O, which is bonded to the O, which is bonded to the CH3। अब बताएं मुझे इसका नाम क्या था? दिस इज इथाइल इथेनोएट एंड दिस इज मीथाइल प्रोपेनोएट। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, हाँ, ये एथेनॉल और इथेनोइक एसिड से बने थे, और ये मेथ एथप्रोप्रोपेनोइक एसिड और मेथनॉल से बने। याद रखिएगा, ये नहीं करने एग्जाम में कि कार्बन काउंट कर लिए तो दोनों के सेम कार्बन है तो स्ट्रक्चर सेम होगा। स्ट्रक्चर सेम है, मेरा मकसद क्या था कि कार्बन अगर इक्वल हो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है, नाम दोनों के सेम है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकता है, नाम दोनों के डिफरेंट है। दिस नेवर मीन्स कि दोनों में 4 कार्बन है तो दोनों एक चीज है। नहीं, एक चीज हो भी सकते हैं, एक चीज नहीं भी हो सकते। सर आप केमिस्ट्री से बोर कब नहीं होती? जिस दिन बोर हो गया उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। सर मीशा कैन आस्क हसन रहीम टू गिव यू अ शाउट आउट, ही परफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट इन 55 फॉर मीशा। और नहीं हसन रहीम को माफ कर दे भाई। और नहीं हसन रहीम के साथ बहुत हमने कॉन्सर्ट्स उसके देख लिए, बस यार उसको चिल करे। नाउ लेट मी गिव यू द इंटायर रीकैप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट मुझे और चाहिए, 5 मोर मिनट्स। चलो जी, 5 मिनट्स टू गिव यू एन इनका। जूना, वो क्या है, जूना, और कितना प्यासे मैं कहूँ ना, ये है, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो जाए। कौन सा इतना बड़ा चैनल है? सिर्फ मीशा ऑफेंड हो रही। ओ चिलो चिलो, और नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, नहीं। अच्छा, so we started off our organic chemistry with our beautiful alkanes, and you learned that alkanes can easily be converted into alkenes, and this process was called cracking. And you realized that for cracking you needed what? You needed a catalyst which was aluminum oxide or chromium 3 oxide, or you could say you could literally use zeolite usually for your IGCSE, and you needed certain other conditions which was high temp and high pressure, and you needed the absence of oxygen, because what we dumbos learned was if there's oxygen these alkanes are fuel, so they undergo combustion reaction. Done. Then you learned that these alkanes can also go into something called halogenoalkanes or haloalkanes. And how do haloalkanes form from alkanes? They formed through the substitution reaction,
And this substitution reaction only happened when there was UV light, which is effectively your sunlight, because the UV light acted as a catalyst, right? And what you realized was this UV light, no, no, not catalyst, sorry, मैं कह सकता हूँ कि this UV light provided it with the activation energy. Done, sir. Or this UV light is also the reason why this reaction is also called a photochemical reaction. It's because why is this reaction called a photochemical reaction? Because any reaction in which light is involved, you can call it a photochemical reaction. So substitution reaction is also an example of photochemical reaction. Then what you learned was, and you needed a reagent, like for example chlorine इस्तेमाल किया, bromine, you needed a halogen, right? So हमें एक halogen के साथ react करना था, सिर्फ halogen के साथ ये reaction हो सकता था. Done, sir. हाइड्रोजन माइड्रोजन किसी चीज के साथ नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन हैलोजेंस का alkenes के साथ reaction होता. Then the alkenes can go into haloalkanes. How can alkenes go into haloalkenes? You could react it with halogens, or you could react it with hydrohalogen. And the condition for this was what? What was the condition for this? The condition was that this happened at room temperature and pressure and in a dark room. That was the condition for it. That's why there was a distinguishing test between alkenes and alkenes, which is add Br2 aqueous, which is orange in color, and with alkenes it will go from orange to colorless, effectively decolorize it, and with alkanes it will stay orange, right? But then you also learned that you could go from alkenes into alkanes. सर कैन दिस कम इन दी प्लानिंग क्वेश्चन? क्यों नहीं आ सकता है कुछ भी? एटीपी में ये सवाल नहीं आते वैसे, लेकिन चलो. And the alkenes can go into alkenes. And how can alkenes go into alkenes? You looked at both of their general formulas and you realized that alkenes is jitne carbons and hydrogens are twice the number of that, and alkanes is jitne carbons and hydrogens are twice the number of that plus 2. Sir, so if there's a difference of H2, you could literally go from alkenes to alkanes by using a reagent called hydrogen. But you needed certain conditions. What was that condition? You needed nickel solid as your catalyst, and you needed to heat till 200 degrees Celsius. 100 से 200 में कुछ भी कर सकते हैं. Done? And you would get your beautiful alkane. Then you learned that these alkenes can also go into this. Nickel is my catalyst. Huh? This UV light catalyst नहीं है, UV light provides it with the activation energy. अच्छा जी. This alkene can also go into something known as your beautiful alcohols. अब सवाल पैदा होते हैं, सर alcohols दो तरीकों से बन सकते हैं. एक है through the hydration of alkenes, which is effectively adding steam as the reagent, right? So when you add steam as the reagent, you also needed to provide certain conditions, which is what? You needed to provide a temperature of around 300 degrees Celsius, a pressure of 60 atmospheres or 6000 kilopascals, and a catalyst which is any acid. लेकिन मैं इधर एसिडिफाइड एक्वस फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल करूंगा. आप कोई भी एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? बट आई से इट्स बेटर टू यूज एसिडिफाइड एक्वस फॉस्फोरिक एसिड. पहले आपके पेपरों में एक एसिड इस्तेमाल होता था, अब एग्जामिनर कहता है कि नहीं बच्चा कोई भी एसिड इस्तेमाल कर सकता है. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा बस एसिडिफाइड, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एसिडिफाइड एक्वस फॉस्फोरिक एसिड, एंड यूड गेट एल्कोहल. बट you also realize that you could get alcohols through another thing, and that was fermentation, right? So you could literally perform fermentation of what? Of glucose. तो आप ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करके, लेकिन इस ग्लूकोज की फर्मेंटेशन से सिर्फ एक अल्कोहल बनता है जो कि आपके पास एथेनॉल है. एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन? यू नीड टू प्रोवाइड अ टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, यू नीड टू ऐड yeast to it, absence of oxygen, pH of around 6 to 8 and whatnot, right? And add water to glucose, water भी डालना है ग्लूकोज में. ये तीन ज़रूरी कंडीशंस हैं. अगर 4-5 मांगे तो ये दो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. बट फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज से सिर्फ एथेनॉल बनता है. फिर आपने पढ़ा समथिंग नोन एज योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब सवाल पैदा होते हैं, सर इन सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है? नहीं, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता आपके कोर्स में, लेकिन ए लेवल्स में आप पढ़ेंगे बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बहुत आपस में सब कुछ कनेक्टेड है. तो सारे अगर आपके जहन में ये मैप बन गया ओ लेवल से ना, तो ए लेवल्स आपके लिए हलवा होगा. अच्छा जी. फिर एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनते हैं? आपने पढ़ा सर एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से, हमारे कोर्स में एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और ये ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इट? यू नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको कैटलिस्ट नहीं कहते, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which is acidified aqueous potassium manganate 7. This is purple in color, so it goes from purple to colorless, and you also need to heat it, sir. तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए. फिर फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फर्दर रिएक्शंस होते हैं. जो एसिड्स की रिएक्शंस है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस है. एंड देन इन द एंड यू लर्नड व्हाट? हमने एंड में क्या पढ़ा? एस्टरिफिकेशन. तो ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला के क्या बनाते हैं? दे कंबाइन टुगेदर टू गिव यू समथिंग नोन एज एस्टर्स. और इस एस्टर्स बनने का क्या तरीका है? सर यू यूज कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड एंड यू हीट इट. ये पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म.
इसके अलावा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ सकता। क्या था? आसान था, मुश्किल था? आसान था, मुश्किल था? सर विल वी डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम? बिल्कुल बिल्कुल, आपके कोर्स में है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बिल्कुल एंड में फ्यूल्स मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एंड में। फ्यूल्स बहुत सिंपल है, बिल्कुल एंड में पढ़ाऊँ, ठीक है? प्लीज जूम आउट, प्लीज जूम आउट, ये लो, खुश हो जाओ। अच्छा, अब मेरे एक सवाल है, ये सवाल जिन बच्चों ने मिस किया ना, तो वो मैं क्या ही कह सकता हूँ। अब देखिए, अब मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करता हूँ, एक कंपाउंड से, एक कंपाउंड से आ जाएं। दिस जो अब मैं आपको कराने लगा हूं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इज दिस अ पार्ट ऑफ योर कोर्स? इट कैन बी टेस्टेड इन योर एग्जाम, एब्सोल्युटली टेस्ट हो सकता है। हैज इट एवर बीन टेस्टेड इन योर एग्जाम? नेवर। लेकिन अब जो कैम्ब्रिज का तरीका जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उनको भी पता है कि टीचर्स को अब गुस्सा आ रहा है कि यार कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग करे, बस कर दे, पास पेपर्स के रट्टे मारो और बच्चे का ए और ए स्टार आ जाता है। नहीं, अब कैम्ब्रिज थोड़ी बहुत कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, वैसे तो बहुत आसान है यार, कैम्ब्रिज के सिलेबस में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज कराऊंगा, इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहते हैं और कुछ भी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। आपके पास यू हैव एन एल्कीन, एंड मैं आपको कह सकता हूं सर इस एल्कीन से मुझे, यू हैव 6 कार्बन एल्कीन, और इस 6 कार्बन एल्कीन से आप इसका एक रिएक्शन करते हैं इस 6 कार्बन एल्कीन का, तो आपके पास सर एक एल्कीन बनता है। इस एल्कीन को ले और एक आपके पास हाइड्रोजन गैस बनता है। सर इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके मुझे आप एस्टर बना के दें, मेक एन एस्टर। अब मैं देखता हूं आपकी आपकी जो है जहन की किधर तक आपका नॉलेज जाता है। सर ये ले लें, यू हैव एन एल्कीन, and when you you perform a reaction, you get an alkene and hydrogen gas, and I want you guys, I want ester as the end product, और मुझे बताएं कि इस एस्टर जो बनेगा एंड में उसका नाम क्या होगा। चलो जी, शुरू करें। मैं देखता हूं आपका दिमाग किधर तक जाता है। ये ए लेवल्स की बहुत बड़ी तय। आई लव्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ए लेवल्स, मेरा दिमाग हर जगह मॉलिक्यूल्स में फंसा होता था, इधर से यूं भी बना सकते हैं, यूं भी बना सकते हैं। आई वांटेड टू डू अ पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं किधर से क्या हो गया, देखते देखते हैं। चलो जी, कुछ चीजें होती है जिंदगी में, यू हैव टू बी वाइज अबाउट इट, राइट? पीएचडी बनता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बनता तो कुछ भी ना कर रहा होता, अब टीचर ही बनता फिर। चलो जी, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। शाबाश। टीचर वो होना चाहिए जो आपके पास शौक से पढ़ाता हूँ, नॉट हु इज डिपेंडेंट ऑन दिस। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं दिल से पढ़ाता हूँ। चलो जी, शाबाश। करें, मैं कराऊं, मैं कराऊं। 6 कार्बन एल्केन इज व्हाट? C6H, carbon is 6, so hydrogen should be twice the number of that, 12 plus 2, C6H14, और इसका नाम क्या था? हेक्सेन था, हेक्सेन। हेक्सेन की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और साथ में आपने सारी कंडीशंस भी लिखनी है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग, एंड वंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस यू नीड हाई टेम्प एंड हाई प्रेशर, you need absence of O2, and you need a catalyst which is aluminum oxide, cryolite, और क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम 3 ऑक्साइड है, क्रायोलाइट भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अब एक एल्कीन बना और हाइड्रोजन गैस, अगर हाइड्रोजन गैस सिर्फ बने, दैट मींस द एल्कीन दैट इज फॉर्मिंग इज C6H12, राइट? इन इसको इससे माइनस करें, व्हाट यू गेट? C6H12। ये एक एल्कीन बन गया मेरे पास, खत्म। एक एल्कीन, जियोलाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल, जियोलाइट। अच्छा, ये एक एल्कीन बन गया C6H12। अब मुझे किधर जाना है? मुझे एस्टर में जाना है। एस्टर के लिए पहले क्या बनाऊं? एल्कीन से क्या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं? मेरे कोर्स में मैंने नहीं पढ़ा। आई हैव नॉट स्टडी। ए लेवल्स में सब कुछ पढ़ेंगे, बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे कोर्स में मैंने पढ़ा कि आई कैन गो फ्रॉम एल्कीन to carboxylic acid. What do I need for an ester? I need a carboxylic acid and an alcohol. So what I can do is I can take this alkene. Alkene से तो मैं carboxylic acid में नहीं जा सकता, हाँ, but I can go from an alkene to an alcohol, and from the alcohol I can make a carboxylic acid. तो मैं कह सकता हूँ कि alkene से मैं शराब बना लेता हूँ। कौन सा शराब बनेगा? Sir, what is the reagent that I'll use? I'll use steam. And what are the conditions? Sir, phosphoric acid. A level में ऐसे सवाल आते हैं। Phosphoric acid is my catalyst. Temperature of 300 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 60 एटमॉस्फेयर। तो मैं अल्कोहल बनाऊंगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा? सर दिस वाज हेक्सीन, तो कौन सा अल्कोहल बनाएगा? सर हेक्सीन अल्कोहल नहीं है, कौन सा अल्कोहल बनेगा? हेक्सीन से कौन सा अल्कोहल बनेगा? हेक्सानॉल। 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन एल्कीन से 6 कार्बन अल्कोहल बनेगा, तो सर ये हेक्सानॉल बन गया।
डन सर। अब हेक्सानोल के बाद मैंने हेक्सानोल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, ये तो मेरे पास एसिड अल्कोहल आ गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना है टू मेक व्हाट, टू मेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा इससे? सर हेक्सानोइक एसिड बनेगा। सर हाउ डू यू गो फ्रॉम अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड? सर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं सर। ऑक्सीडेशन में कितने ओज लगते हैं? 2 ओज लगते हैं, बिल्कुल सर। और कौन सी कंडीशन है सर? हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए विच इज एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैंगनीट 7, एंड वी नीड टू हीट इट टिल 200 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सर, कर लिया, फिर क्या करूं? सर अब हेक्सानोल और हेक्सानोइक एसिड को कंबाइन करूंगा मैं, इन दोनों को कंबाइन करूंगा, और सर इससे मैं बनाऊंगा एक एस्टर। और क्या कंडीशंस होंगे सर? आई नीड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क H2SO4, एंड आई नीड टू हीट इट टिल 200 डिग्री सेल्सियस। एंड विच एस्टर वुड आई गेट? आई वुड गेट हेक्साइल हेक्सानोएट। तो ए लेवल और ओ लेवल में सिर्फ इतना फर्क है कि ए लेवल में आपको ये और ये इंफॉर्मेशन दे देगा और वो आपको कहेगा एस्टर बना के दो या एल्डिहाइड बना के दो। तो देखिए आपका दिमाग पे डिपेंड करता है ये मैप आपके दिमाग में कितना अच्छा से फिट हो गया, कितना आसान है। इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? आपका ए लेवल्स भी हो गया? नहीं हुआ, ए लेवल्स बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन एक थॉट प्रोसेस आपको मिल गया। तो ए लेवल्स में मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं अभी से एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ कि ए लेवल्स में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने बैठो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है मुश्किल उसमें। सिर्फ रिमेंबर योर माइंड मैप्स, रिमेंबर दैट यू कैन प्ले अराउंड विद स्टफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सो ब्यूटीफुल just because you can go from, you can just take one thing and you can make so many things out of it and you will just enjoy the chemistry of making। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं अपनी जबान में कहता हूँ द केमिस्ट्री ऑफ मेकिंग। तो बड़ी मजे मजे की चीजें आप बना सकते सर। जब एस्टर पानी के साथ रिएक्ट करे तो ये रिएक्टेंट्स मिलते वापस पानी के साथ नहीं, वो आप बाद में पढ़ेंगे। हम इसको डाइल्यूट एसिड डालते हैं या डाइल्यूट बेस डालते हैं या एल्कली डालते हैं और हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, तो आपके पास वापस ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ये रिएक्टेंट्स बन जाते हैं, बट दैट्स नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊँ सर। अगर ये ब्यूटीफुल है तो बुरा क्या है? कुछ भी बुरा नहीं है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री इन जनरल, कि आप एक चीज को पकड़ के ना चीजें बस बना सकते हैं, बना सकते हैं। सर आई हैड अ क्वेश्चन, कैन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव टू फंक्शनल ग्रुप्स? बेटा कल मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाऊंगा किडो। आई टीच यू फंक्शनल ग्रुप्स टुमारो व्हेन आई टीच यू होमोलोगस सीरीज इन आइसोमेरिज्म। और फिर एक कंपाउंड में दो क्या, जितने फंक्शनल ग्रुप है सब हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट, राइट। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सी चीजें हो सकती है। इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल की लड़ाई आप लोग मेरे से उस दिन कर रहे थे, तो मैं आपको प्रूफ करूंगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक मॉलिक्यूल दूंगा और उस एक मॉलिक्यूल पे मैं आपको सारी रिएक्शंस कराऊंगा, एंड दैट्स आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो आपके ए लेवल में भी बहुत काम आएगा। जो ए लेवल में केमिस्ट्री लेंगे, जो नहीं लेंगे इट्स ओके, लेकिन ओ लेवल में भी काम आएगा। दिस कैन रिमेंबर, दिस इज नॉट स्टेटेड बाय योर एग्जामिनर कि भाई ये एग्जाम में नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसी टेस्टिंग वो कर सकते हैं, करता नहीं है क्योंकि वो समझता है बच्चे बहुत मासूम है, भोले भाले हैं, रहने दो। लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ सालों में किया भी था एक वक्त। अब बहुत साल हो गए ऐसी टेस्टिंग उसने नहीं की, लेकिन कर सकता है। ठीक है जी, चलो एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर, एनी क्वेश्चंस? कल फिर होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर पूछिएगा।